السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ ملاقات میں سورۃ ہمزہ کے معنی بیان کیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ العصر بیان کریں گے۔ عصر ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی کہ بے شک ضرور انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کی زمانے کی قسم کھا کے فرماتا ہے کہ بے شک ضرور سبھی انسان خسارے نقصان میں ہے۔ یہ نقصان خسارہ کس چیز کا ہے اور کیوں ہے، اور زمانے کی قسم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ زمانے کی قسم کا تعلق اس لحاظ سے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے ایک مختصر وقت کے لیے، اور اگر یہ انسان اس وقت کو آخرت کی آگے کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرتا، اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ضرور یہ انسان خسارے نقصان میں ہے۔ وہ خسارہ نقصان کس چیز کا ہے؟ وہ خسارہ ہے کہ جس سے بڑا کائنات میں کوئی خسارہ نہیں، کہ جس میں ہمیشہ کی نعمتوں بڑی جنت کو کھو دینا، اس سے محروم ہو جانا، اور ہمیشہ کی عذاب و بری جہنم کا ایندھن بن جانا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ، کہ خبردار اصل خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارہ میں ڈال دیا، یہ جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کرتا ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی سی صورت جو چند الفاظ کی ہے اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے، اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اسی صورت پر غور و فکر کر لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ کافی ہونے کا معنی کہ ان کی نجات کے لیے اور ان کی دنیا آخرت کی کامیابیوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وقت جو انسان گزار رہا ہے، کس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہر گزرتا وقت انسان کو کہاں لے جا رہا ہے۔ ہر وہ سانس جو انسان لے رہا ہے اس کو اس کی موت کے قریب کر رہا ہے۔ ہر وہ قدم جو انسان اٹھا رہا ہے اسے اس کی قبر کے پاس لے جا رہا ہے۔ تو پھر اگر آگے کی تیاری نہیں ہے، قبر کے لیے کوئی تیار نہیں کیا، روز محشر کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، تو پھر اس سے بڑھ کر اور خسارہ کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا کہ جس نے کہا کہ میں نے اس صورت کو سمجھا ہے کس سے؟ ایک برف بیچنے والے سے۔ ایک آدمی، اس کی برف کھلی فضا میں پڑی ہے اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ برف پگھل رہی ہے، تو آواز لگا رہا ہے کہ اس آدمی کے حال پہ رحم کرو جس کا سرمایہ بہہ رہا ہے، جا رہا ہے۔ اب اس کا تو سرمایہ صرف برف کے چند کوئی درم دینار کا تھا، برف ساری پگھل بھی گئی، کسی نے نہ بھی خریدی، تو صرف چند دیناروں کا، چند درموں کا خسارہ ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لیکن انسان اگر زندگی اس نے ضائع کر دی، آخرت میں
जन्नत को ना जा सका, जहन्नम को चला गया, तो असल खसारा ये है, असल नुकसान ये है। और वाकई ही जिस तरह बर्फ़ पिघल रही है, वक़्त भी इसी तरह से गुज़र रहा है। आप इसको अच्छी चीज़ में गुज़ार लो, इसको बुरी चीज़ में गुज़ार लो, आप इससे फ़ायदा उठा लो, इसको ज़ाया कर दो, वो जा भी रहा है। बाद सलफ़ सालिहीन के बारे में आता है, किसी उनके दोस्त ने कहा कि आओ गपशप लगाएं, बैठे जिस तरह के हमारे मामूल होते हैं। तो अल्लाह का नेक बंदा कहता है कि सूरज को कहो कि यहाँ पर ठहर जाए, जब तक रुका रहेगा, ठहरा रहेगा, हम गपशप लगा लेते हैं। अगर सूरज चल रहा है, वक़्त जा रहा है, इसका मतलब कि हमें ऐसी गपशप लगाने की गुंजाइश हमारे पास नहीं है कि जिसका कल क़यामत के दिन को फ़ायदा ना हो। और यही भाइयों हम असल अक्लमंदी है। नबी के मसला फरमाते हैं कि आदमी जो भी कहीं जगह बैठता है, लेटता है, कुछ भी दुनिया में कोई वक़्त भी गुजारता है, ऐसा वक़्त जो उसका अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजरता है, क़यामत के दिन उसको अपनी इस महफ़िल मजलिस, इस चीज़ पर जो है हसरत अफसोस होगा। और दूसरी हदीस में ये भी आता है कि उसका मामला अल्लाह की मर्ज़ी पर है, अल्लाह ताला चाहे तो उसके इस ज़ाया किए हुए वक़्त की उसको बख्श दे, और चाहे तो उसकी इसको सज़ा दे दे कि तुझे वक़्त दिया था, तूने ज़ाया क्यों किया। अगर ये वक़्त हमारे यहाँ आज एक मामूली चीज़ है, वक़्त पास कर रहे हैं, जैसे कि बड़ी कोई मुसीबत सर पे पड़ती है जिसको टालना होता है, ऐसे ही है। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, ये मोबाइल का फितना, इसमें किस अंदाज से आज मुलव्वस हैं सभी कि कितने मिनट नहीं घंटों आदमी बैठा रहता है, एहसास ही नहीं होता कितना वक्त गुजर गया, कितना वक्त ज़ाया कर दिया। और बाज़ औक़ात उसमें देख भी बेहुदा गलत चीज़ें, या कम से कम गलत ना भी, बेहुदा ना भी हो, कुछ जायज़ भी हो, तब भी कम से कम उसमें वक़्त का ज़ाया होने का गुनाह तो है ही, वो तो है ही। इसलिए इंसान को ज़रूरत है अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की। और बाज़ उलमा ने तो बल्कि दुनिया की ज़िंदगी को इम्तिहान के पेपर से मिसाल दी है कि दुनिया की आपकी ज़िंदगी ऐसी है जिस तरह आप एग्जामिनेशन हाल में हो, इम्तिहान के कमरे में हो, और आपको पेपर दे दिया गया है, और उसका टाइम, उसका वक़्त महदूद है, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी है लिखा होता है। अब अगर तालिब इल्म को वाक़ई ही ज़हीन है, अक्लमंद है, सबसे पहले तो पेपर को देखेगा, सवाल क्या है, कौन सा सवाल पहले करना मेरे लिए आसान है, उसको कर लेगा, ताकि जिन सवालों पर ज़्यादा सोच फिक्र की ज़रूरत है उनको आखिर में रखें। और बेवकूफ़ तालिब इल्म क्या करता है, वो मुश्किल सवाल पर बैठ जाता है, और बैठा बैठा उसी पर अपना टाइम गुजार देता है। हालांकि उसके पास कई सवाल होते हैं आसान भी हल करने वाले, कर सकता है, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी उसी मुश्किल सवाल पर बैठ कर टाइम ज़ाया कर देता है। और उससे बढ़कर वो बदबख्त कि जिसने तैयारी नहीं की, बैठा देख रहा है, वक़्त गुजर रहा है। तो ऐसे ही ये ज़िंदगी है, इसमें आप कुछ कर लो या ना करो, अच्छा कर लो या बुरा कर लो, जिस तरह तालिब इल्म इम्तिहान के पेपर में जो लिख रहा है उसका वही रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह इंसान अपना ज़िंदगी का पेपर हल कर रहा है कि जिसका कल क़यामत के दिन रिज़ल्ट निकलेगा, कल क़यामत के दिन इसका रिज़ल्ट सामने आएगा, और रिज़ल्ट भी ऐसा कि अल्लाह ज़िंदगी भर का रिकॉर्ड इंसान के सामने रख देगा, और फरमाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, कि आज अपना अमालनामा देख, पढ़ इसको, क्या लिखा है तुमने, क्या लिखवा के आया है, और ख़ुद ही अपने हिसाब कर कि तू कहाँ जाने के काबिल है, जन्नत को जाने के लायक है, जहन्नम को जाने के लायक है। समझे ना। तो ये है वो जो आप पेपर हल कर रहे हो, हम सभी ये पेपर हल कर रहे थे कि जिसका कल क़यामत के दिन रिज़ल्ट सामने आएगा, और रिज़ल्ट भी अकेले नहीं, फास्कों, फाजरों, बेदीनों, बेईमानों का रिज़ल्ट जो है पूरी दुनिया के सामने वहाँ ऐलान होगा।
उनके रिजल्ट का पूरी मखलूक़ात के सामने ऐलान होगा कि ये फलां बेईमान है, उसकी ये फलां बेईमानी है। अल्लाह के नेक बंदे जिसको अल्लाह ने पहले से बख्शने का, उनके मफ़रत का अल्लाह ने पहले से फैसला किया हुआ है, या तो किसी खुशकिस्मत का हिसाब होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो किसी पर्दे के अंदर रख के अल्लाह ताला सिर्फ उसको उसके अमाल दिखाएगा कि तूने ये गलती की, ये गुनाह किया, ये नाफरमानी की, पूछेगा नहीं क्यों की, और फिर फरमाए गए तेरे ये वो गुनाह गलतियाँ हैं जिनको मैंने दुनिया में इन पर पर्दा डाले रखा और आज इनको माफ़ करता हूँ। तो बात कर रहे थे कि ये है आपकी ज़िंदगी का पेपर, इसका रिजल्ट जो क़यामत के दिन दिखाया जाना है। तो ज़रूरत है उस रिजल्ट के लिए तैयारी करने की कि क्या देखना है उससे, और ज़रूरत है इस बात की सोच फिक्र करने की कि आज पेपर में क्या लिख रहे हैं, क्या हल कर रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं। आपके दाएं बाएं अल्लाह के 2 फरिश्ते बैठे लिख रहे हैं जो आप कर रहे हो, बात कहते हो, बात करते हो, कोई अमल करते हो, देखते हो, सुनते हो, कुछ भी करते हो, हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये है आदमी का वक्त, उसकी ज़िंदगी। तो उसके बाद मैं अल्लाह ताला इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह ताला के बंदों पर इनाम, उसका फजल, उसकी रहमतें, उसकी शफ़क़त, मेहरबानियाँ किस अंदाज की हैं कि बंदों को खसारे से तंबीह की, कसम खाकर बता दिया कि सभी लोग खसारे नुकसान में हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है? अल्लाह ने तरीका भी खुद ही बता दिया कि 4 काम कर लो, इस नुकसान से बच जाओगे। वो 4 काम क्या हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, सवाए वो लोग जो ईमान लाए। हाँ, हम तो अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं, मोमिन हैं, चलो ये काम तो पूरा हो गया, लेकिन अपने ईमान को चेक करने की ज़रूरत है। ईमान को चेक करने की ज़रूरत है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 में अल्लाह फरमाता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सर जो ईमान के दावे करने वाले होते हैं मुशरिक होते हैं। मैं नहीं कहता, कुरान है, अल्लाह ताला का फरमान है, अक्सर ईमान के दावे करने वाले मुशरिक होते हैं, और आज यही हाल है, हकीकत है। देखोगे आप, हम ही कहते हैं कि जो सैनिकों में बैठे हैं, थिएटरों में बैठे, उनको जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जो नेकियां इबादतों में लगे हैं, उनके भी अकीदे जाकर देखें क्या है। गैर लोग को पुकारना, गैर लोग के लिए नजर न्याज़ें, क्या क्या अल्लाह से हटकर औरों के साथ उम्मीदें, उनके साथ मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई के सारे तसव्वुरात किसके हैं? इन्हीं के हैं। इसलिए अल्लाह ताला को झूठा ईमान नहीं चाहिए, अल्लाह को सच्चा ईमान चाहिए। आमनू, वो खालिस सच्चा अकीदा, सही तौहीद कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए हैं, जिसका अल्लाह ने अपने कुरान में बयान किया है। तो वो खालिस ईमान अल्लाह को चाहिए कि जिसमें कोई शिर्क की मिलावटें ना हो। हाँ, ऐसा ईमान जिसमें शिर्क की मिलावट हो, मक्का वालों का भी था, वो भी अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के लिए तरह तरह की बातें भी करते थे, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दो कि ऐ काफिरों, 2 टोक, बगैर किसी तरह के कोई ऊंच नीच के, खुले साफ तौर पर ऐ काफिरों। तो अल्लाह के यहाँ ऐसा ईमान जिसके अंदर शिर्क हो, वो कुफर है, कभी ईमान नहीं। तो अल्लाह को खालिस ईमान चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है इस खसारे से बचने की? वअमिलुस सालिहात, अमल किए। ये नहीं कि सिर्फ कलमा पढ़ के भी, अब कलमा पढ़ के जन्नत मिल जाएगी, जिस तरह के बहुत से लोग मुसलमानों का हाल है, भाई मुसलमान है, कलमा पढ़ लिए, बस जन्नत हमें मिलेगी, हिंदू को थोड़ी मिलेगी। तो इसलिए अमल बगैर अमल के जन्नत नहीं। और अमल भी कौन सा? अस्सालिहात, जो नेक अमल हो। और नेक अमल क्या होता है? नेक अमल जिसके अंदर 2 शर्तें हो। क्या क्या है? अल्लाह के लिए खालिस हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। ईमान तो पहले ले आए, वो तो पहले जिक्र हो गया ईमान। ईमान के साथ साथ अमल जो है अल्लाह के लिए खालिस हो। नमाज पढ़ी है, उसमें इखलास नहीं है, अल्लाह के इस नमाज की कोई हैसियत नहीं, अल्लाह के लिए खालिस हो। और दूसरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो। ये दोनों शर्तें हमेशा कोई भी नेक अमल करते हुए देखने की ज़रूरत है। अपने दिल को टटोलने की ज़रूरत है कि मेरी नीयत क्या है, मैं किस नीयत से कर रहा हूँ, और अपने अमल को देखने की ज़रूरत है कि मेरे अमल का तरीक़ेकार क्या है। क्या वाकई ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ की है, करने का हुक्म दिया है, करने की इजाज़त दी है,
क्योंकि नेकी इबादत में हमें इजाज़त नहीं कि अपनी तरफ से कोई नेकियां बनाते फिरें, अपनी तरफ से नेकियां करते फिरें। नेकी सिर्फ वो है जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। सिर्फ वो नेकी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका तरीका बताया है। जो आपके तरीके पर नहीं, वो नेकी नहीं। इसलिए अमल सालिहात, नेक अमल जो अल्लाह के लिए खालिस है और आपके तरीके पर है। दूसरी शर्त, अब सच्चा ईमान और नेक अमल कर लिए काफ़ी नहीं। आदमी नेक बन गया ना, ईमान सही है, अकीदा सही है, नेक अमल है, और क्या चाहिए? अल्लाह माते नहीं, भी काफ़ी नहीं। अभी तीसरी शर्त और भी है कि इस ईमान की, इस नेक अमल की दूसरों को दावत देना। अपने तो नेक बन के बैठ जा रहा है, इस्लाम के अंदर काफ़ी नहीं है। इस्लाम एक उम्मत का दीन है, अफराद का दीन नहीं है, समझे ना। इज्तिमाई दीन है कि जिसमें सभी लोगों के साथ मिलकर चलना है। जिस तरह अपनी इस्लाह करना, औरों की भी इस्लाह करना है। खुद को ठीक करना, औरों को भी ठीक करना है। खुद को अल्लाह के दीन पर लगाना चलाना, औरों को भी लगाना चलाना है। इसलिए तीसरी शर्त क्या है? वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक बात की, सच्ची बात की, नेकी की और हक अदा करने की। हक हक भी आता है, उसकी वसीयत की, उसकी तलकीन की। तो इसलिए जब तक किसी आदमी के अंदर दूसरों को दावत देने का जज्बा नहीं, इसकी फिक्र नहीं, इसके लिए को उसका किरदार नहीं, हकीकत में खाली उसकी नेकियां काम आने वाली नहीं। सूरह माइदा 7वें पारे में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इहतदैतुम। ऐ वो लोगों जो मान लाए, अपने आप की फिक्र करो, अगर कोई गुमराह हो गया तो तुम्हें उसका कोई नुकसान नहीं। अबू बकर सिद्दीक मिंबर पर याद पढ़ते हैं और माते कि तुम ऐ लोगों, तुम याद पढ़ते हो लेकिन उसको गलत समझते हो कि तुम खुद नेक बन के बस काफ़ी है। जबकि अल्लाह माता है कि जब तक तुम औरों की इस्लाह नहीं करोगे, तुम्हारी खुद की नेकी भी तुम्हारे काम आने वाली है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कैसे कहते कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए सुना, अगर लोग बुराई देखें और बुराई को रोके नहीं तो करीब है कि अल्लाह का अज़ाब आए और सभी पर आए। इसलिए एक मुसलमान पर जिस तरह खुद अपनी इस्लाह करना फ़र्ज है, उस पर यह भी फ़र्ज है कि औरों की इस्लाह करे। जिस तरह खुद उस पर नेकी करना फ़र्ज है, औरों के भी नेकी के रस्ते पर लगाना चलाना उस पर फ़र्ज है। तो तीसरी शर्त यह है इस खसारे से बचने की कि औरों को भी नेकी की दावत देना, हक बात की दावत देना। वतवासौ बिल हक़, और यहाँ पर हक बात के हवाले से भी ये नहीं कि जिसको नेकी समझ लें, क्योंकि बात माशाअल्लाह बड़े उनके बाद और तबलीग दुनिया के मशरक़ व मग़रिब में उनके माशाअल्लाह लंबे लंबे उनके टूर, लेकिन कि हक की दावत है, हक की तबलीग है, हक की नसीहत है, कुरान सुन्नत के मुताबिक है। हाँ, ये देखने की ज़रूरत है कि अपना ही खुद साख्ता कोई दीन है, अपना खुद साख्ता कोई तरीका है। इसलिए यहाँ पर यह भी देखने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ की दावत देते हैं क्या वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और फिर चौथी शर्त वतवासौ बिस्सब्र, ईमान ले आए, नेक अमल कर लिए, दूसरों को भी नेकी का हुक्म दे रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं। कब तक? एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना? हमारे यहाँ ही होता है। रमज़ान आता है, पहले 2 दिन देखिए मस्जिद कैसे भरी होती है, और तीसरे दिन ही जोश उड़ जाता है, चौथे दिन ही मस्जिद खाली होना शुरू हो जाती है, और रमज़ान के दरमियान तक वही क्या चंद लोग बाकी होते जो रमज़ान से पहले थे। क्या वजह क्या है? सब्र नहीं है। इसलिए चौथी चीज़ सब्र, और सब्र का माना कि नेकी पर इस्तिकामत, उस पर चलते रहना, जमे रहना, जागसारी रहना। किसी बुराई को छोड़ा है तो छोड़े रखना। ये नहीं कि सूद के बारे में सुना कि ये तो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग है, ये तो इस पर इसके खाने में इसके करने वाले पर लानतें पड़ती हैं, ये तो ऐसा है वैसा है, तो 2-4 दिन के लिए छोड़ दिया, देखा कि बड़ा पैसा जा रहा है, बड़ा पैसा छूट रहा है, फिर शुरू कर दिया। हाँ, सब्र होगा तो फिर आदमी बड़े से बड़े प्रॉफिट भी दुनिया के छोड़ देगा, पता है कि इस प्रॉफिट के पीछे जहन्नम है। सब्र होगा तो बड़ी से बड़ी नेकियां भी इंसान कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगती हो, उस पर डटा रहेगा, जमा रहेगा। सब्र होगा तो अल्लाह की तरफ से आने वाली आज़माइशें, तकलीफें भी उसके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन जब सब्र नहीं होगा तो हत्ता कि और तो और ईमान भी बाकी नहीं रहता। ईमान लाने के लिए इस पर भी आज़माइशें आती हैं, इम्तिहान होते हैं, और तरह तरह के मुश्किलात का सामना होता है। अगर सब्र नहीं होता तो तारीख उठाकर देखिए आपके सामने भर के लोग किस तरह दीन से फिरे होते हैं। मामूली माल की चमक, हाँ, दीन छोड़ दिया, ईमान से फिर गए, बस माल दुनिया। आज लोगों की दौड़े लगी हैं उन मुल्कों की तरफ, किस लिए?
जन्नत के लिए, आखिरत के लिए, सिर्फ दुनिया की चंद दिन की आसाइशें और दुनिया की अयाशियों के लिए, इस बात को भूल करके वहाँ पर जाकर नतीजा क्या होगा? कुफ्र के उस माहौल में रहकर अपने ईमान का अपनी कम से कम अपने अहल वयाल के ईमान का माहौल का नतीजा क्या होगा? लेकिन नहीं, दौड़े लगी हैं और बड़ी बड़ी करोड़ों की शक्ल में पैसा खर्च करके जा रहे हैं, समझे? तो किस बात का क्या माना है? इसी से पता चलता है कि ईमान पर चलने के लिए सब्र की ज़रूरत है, नेक अमल करने के लिए सब्र की ज़रूरत है, और जहाँ तक लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये तो है ये सारा सब्र का काम, अंबिया का काम, रसूलों का काम, कि जिस पर कदम कदम पे रुकावटें हैं, उस पर कदम कदम पे आजमाइशें हैं, मुश्किलात हैं, सब्र नहीं होगा तो आदमी इस रस्ते पर चल ही नहीं सकेगा। इसलिए इन तीनों कामों को करने के लिए सब्र चाहिए, इस्तिकामत चाहिए, और इस्लाम इन चीज़ों पर जमे रहना, डटे रहना, मरते दम तक इस दीन पर कायम दायम रहना, ये है जो नजात का रास्ता है, ये है जो कामयाबी है। वरना चंद दिन इबादतें नेकियां करके छोड़ दी, मौत आई बेदीनी की हालत में, अल्लाह के यहाँ कोई फायदा नहीं। अल्लाह के यहाँ ये है कि आपका एंड किस चीज़ पर होता है। इसलिए अल्लाह ने कसम खा के ताकीदों के साथ इस चीज़ का बयान किया कि सभी लोग खसारे नुकसान में हैं, सवाए जो ये चार काम कर लें तो इस नुकसान से बच जाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो भी इस नुकसान में है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हर ज़िंदगी की हकीकत को समझ जाने की तौफीक दे, और वो अमल करने की तौफीक दे जो हमें नजात कामयाबी की तरफ ले जाने वाले हो, और नुकसान खसार से बचने की तौफीक दे। बारक अल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर।